শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। সপ্তম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 41-এর তাৎপর্যের দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ। কি অনুচ্ছেদ বলে নাকি না পরিচ্ছেদ? অনুচ্ছেদ তো নাকি অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ থেকে শুভারম্ভ করিব। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা কীর্তন করে না অথবা নৃত্য করে না। তাদের মতে এই নৃত্য কীর্তন হচ্ছে তৈষর্ত্রিক। तैषर्त्रिक, तैषर्त्रिक को क्या लिखा है हिंदी में? वही लिखा है, तैरेत्रिक लिखा है। मैंने भावुक होगा ना। इंग्लिश में क्या लिखा है? Prabhu, it's written that dancing, this method of chanting and dancing is called Trayatrika, which indicates that a sannyasi should completely avoid such activities and engage his time in the study of Vedanta. যাই হোক, এবং সন্ন্যাসীর কর্তব্য হচ্ছে এই ধরনের কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে বেদান্ত পাঠে তার সময় অতিবাহিত করা। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य का भी इच्छा था कि महाप्रभु को वेदांत पाठ कराएगा। প্রকৃতপক্ষে তারা জানে না বেদান্ত বলতে কি বোঝায়। ভগবদ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, বৈদেশ্চ সর্বম অহমেব বৈদ্য বেদান্ত কৃত বেদ বিদেব চাহম। সমস্ত বেদে একমাত্র আমি হচ্ছে জ্ঞাতব্য। আমি হচ্ছে জ্ঞাতব্য মানে आई एम टू बी नोन। अगर कुछ वेद पढ़ के जानना है वो मेरे 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 बारे में जानना है, ऐसे भगवान बता रहे। আমি হচ্ছি বেদান্তের প্রণেতা। প্রণেতা मीन्स रिसाइटर ना, कंपाइलर। मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ। वेदो वेत्ता ने ज्ञाता तो मीन्स आई एम टू बी नोन। उतागे बोला संग्रह करता। हाँ, संग्रह माने करेक्टर या कंपाइलर, सब कंपाइल करके। শ্রী কৃষ্ণই হচ্ছেন বেদান্তের প্রকৃত প্রণেতা এবং তিনি যা বলেছেন তাই বেদান্ত দর্শন। যদিও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীমদ্ ভাগবত রূপে যে অপ্রাকৃত বেদান্ত দান করে গিয়েছেন, तो श्रीमद् भगवान वेदांत श्रीमद् भागवत रूप में वेदांत माने कौन सा रूप में भगवान ने दान किया ये भागवत, श्रीमद् भागवत? वेद व्यास के रूप में। वेद व्यास का ही तो कमेंट्री है ना भागवतम, समझ में आ रहा है? सत्तावेश अवतार उन्हीं को तो कहा जाता है। हाँ, साहित्य सत्तावेश अवतार। যদিও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীমদ্ ভাগবত রূপে যে অপ্রাকৃত বেদান্ত দান গিয়েছেন সেই সম্বন্ধে মায়াবাদীদের কোনো জ্ঞানই নেই, তবুও তারা তাদের অধ্যয়নের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত। বেদান্ত দর্শনকে যে এই সমস্ত মায়াবাদীরা কিভাবে বিকৃত করবে তা বুঝতে পেরে শ্রীল ব্যাসদেব বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যরূপে শ্রীমদ্ ভাগবত রচনা করেছেন। हरि बोल। इनको मालूम था कि मायावादी लोग इसको टेढ़ा मेढ़ा करेगा, इसीलिए भगवान आकर कमेंट्री कर दिया। वेदांत सूत्र का कमेंट्री भी भगवान कर दिया। उस कमेंट्री को क्या बोलता है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत হচ্ছে ভাষ্যহং ব্রহ্মসূত্রানাম। পক্ষান্তরে ব্রহ্মসূত্র রূপে বেদান্ত দর্শন শ্রীমদ্ ভাগবতের পাতায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এইভাবেই বেদান্ত দর্শনের প্রকৃত পাঠক হচ্ছেন সেই কৃষ্ণ ভক্ত যিনি সর্বদা ভাগবত গীতা ও শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করে তার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করেন এবং এই সমস্ত গ্রন্থের তাৎপর্য সমস্ত জগৎ জুড়ে শিক্ষা দেন। ही इज द एक्चुअल वेदांत पाठ करता है।
বেদান্ত দর্শনের উপর একাধিপত্য বিস্তার করেছে বলে मायावादीরা খুব গর্ব করে। एकाधिपत्य माने एकदम मोनोपोली, हम लोग का वेदांत पाठ हम लोग का लिए, हम लोग ही किया है, मोनोपोली है, इसलिए बहुत उन लोग अहंकार करता है। কিন্তু ভগবত ভক্তের জন্য বেদান্ত ভাষ্য হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত এবং অন্যান্য আচার্যদের প্রণীত ভাষ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাষা হচ্ছে গোবিন্দ ভাষ্য। हरि बोल। एनी क्वेश्चन? कोई लाइन समझ नहीं आया अभी तक? हाँ, ये गोविंद भाष्य, ये बलदेव विद्याभूषण कमेंट्री लिखा है। अगर गौरीय वैष्णवদের কোনো भाष्य कमेंट्री अगर सुनना है तो क्या? गोविंद भाष्य। यस प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु बोल रहे हैं कि ये मायावादी लोगों का वेदांत पाठ क्या है? ओके, यस, किसी का कोई प्रश्न है इस पैराग्राफ से? ओके, सो वेदांत गोविंद, एक्सक्यूज, हरे कृष्ण, गोविंद भाष्य किसने लिखा है? बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण। Okay. Thank तो you. देखिए, ये वेदांत तो सब भगवान से ही आया है। देखिए इस पैराग्राफ का बीच में क्या बता रहा है, सर्वस्व चाहम अहमेव वेद्य, আমি কম্পাইল করেছি, ভগবান বলছেন আমি কম্পাइल করেছি। हाँ, और ये जो भाष्य उन लोग जो पढ़ता है वो अपना मनगढ़ा मायावादी भाषा, तो भगवान का दिया हुआ शिक्षा का उन लोग मनगढ़ा भाषा करके और बोलता है हम वेदांत पाठ के हैं। तो मायावादी लोग उसी भगवान का दिया हुआ जितना भी वेद उपनिषद पुराण है उसी का अपना भाष्य बनाए। ओके, उसको क्या बोला जाता है? उसको वेदांत भाष्य, माने उनादेर भाष्य, मायावाद भाष्य। तो भगवान ने क्या देखा? भगवान ने देखा रे हमारा दिया गया ज्ञान को उन लोग तो कमेंट्री उल्टा पुल्टा बना रहे अपने हिसाब से। तुरंत भगवान ने वेद व्यास रूप में अवतार लिया और उसी वेदांत भाष्य का उसी वेदांत का अपना भाष्य लिखा। वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। उसके पहले क्या था प्रभु, जब भगवान नहीं दिए थे उसके पहले? 18 पुराण, 108 उपनिषद, ये सब था। ये सब तो हाँ, तब ये भागवतम नहीं था, है ना? नहीं, भागवतम तो कमेंट्री हो गया। हाँ, भागवतम इज कमेंट्री ऑन वेदांत, माने वेद, सब वेद। उसीलिए भागवत को 18 पुराण का सार बोला जाता है, अमल पुराण भागवतम। और वही भगवान ने भगवत गीता भी दिया जिसको गीत उपनिषद बोला जाता है। ये पूरा 108 उपनिषद का निचोड़ेंगे तो यही मिलेगा। उसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान ने तुरंत वेद व्यास के रूप में, क्योंकि उनको देखिए लिखा है क्या, देखिए বেদান্ত দর্শনকে যে এই সমস্ত মায়াবাদীরা কিভাবে বিকৃত করবে মানে আপনার কমেন্ট্রি মে, তা বুঝতে পেরে শ্রীল ব্যাসদেব বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যরূপে श्रीमद् भागवत रचना करेছে। वो समझ गया भगवान कि इसको टेढ़ा मेढ़ा करेगा, तुरंत भगवान ने वेद व्यास रूप में अवतार लिया। करुणारती माता जी। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। भगवत पुराण भी है ना, भगवत पुराण ही तो श्रीमद् भागवतम इस भगवत पुराण। यस, उसको अमल पुराण बोला जाता है। अमल माने जो कभी गंदा माने कलुषित नहीं होता है। कलुषित नहीं हो। हाँ, करेक्ट, सही बोला आपने। सो ये गौड़ीय वैष्णव भाष्य होच्छे गोविंद भाष्य। अगर हम लोग अगर कोई कमेंट्री पढ़ेंगे वो है गोविंद भाष्य बलदेव विद्याभूषण का। अभी बलदेव विद्याभूषण का भाष्य, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भाष्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भाष्य, अलग अलग साधु लोग का, आचार्य लोगों का भाष्य लेकर श्रील प्रभुपाद ने अपना भाष्य लिखा है ना, अपना भाष्य लिखा है। तो ये पढ़ेंगे तो श्रील प्रभुपाद का भाष्य पढ़ेंगे तो बहुत आचार्यों का भाष्य कवर करते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं और उनका नाम भी उल्लेख करते हैं प्रभुपाद, अकॉर्डिंग टू श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ऐसे लिखता है ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रील आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ब्ला 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 ब्ला। इसका मतलब सबको कोट करते हैं। प्रभुपाद ने एक्सटेंसिव स्टडी किया, अलग अलग कमेंट्री करने के बाद श्रील प्रभुपाद ने अपना कमेंट्री लिखा है। उसलिए दूसरा कमेंट्री पढ़ने का अगर समय है तो पढ़िए, लेकिन दरकार नहीं है। श्रील प्रभुपाद का कमेंट्री पढ़ने से ही सबको हो जाएगा। महामंजरी माता जी।
प्रभु, लेकिन ये भागवतम तो द्वापर में हो गया, और यहाँ पे अभी ये कलयुग में महाप्रभु आके इसका खंडन कर रहे हैं मायावादियों का, तो उसके बीच में क्या लोग पढ़ते नहीं थे? भागवतम, हाँ पढ़ते थे। भागवतम तो हमेशा था माता जी। हाँ, भागवतम तो बने इसकी, ये तो एक ब्रह्मांड का एक कल्प में चल रहा है, हाँ, लेकिन भागवत सिद्धांत और भागवतम तो हमेशा एग्जिस्ट करते थे। तो फिर महाप्रभु अभी मतलब आकर के जो खंडन कर रहे हैं मायावादियों का, हाँ, तो ये इतना मतलब बाद में खंडन किया गया? मायावादी को खंडन कर रहा है, हाँ। तो मैंने हम प्रश्न समझा नहीं। मतलब मायावादी बाद में, जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं जो ये चैतन्य चरितामृत में, तो हाँ, ये तो बाद में लिखा गया है ना? हाँ, बाद में लिखा गया है। तो इसका खंडन बाद में हुआ कि मायावादियों का पहले नहीं हुआ? पहले नहीं हुआ मायावादी लोगों का खंडन। मायावादी लोग तो बहुत मोनोपोली करता था, तो मायावादी लोगों का खंडन तो महाप्रभु आकर उन लोग को खंडन नहीं, उन लोग को वैष्णव बना दिया एक्चुअली, महाप्रभु आकर। और यहाँ तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी के गुरुदेव भी सिंह गुरु बोला जाता था। उन्होंने भी ये सब मायावादी लोगों का विरुद्ध में बहुत आंदोलन किया। उन लोग का पूरा पर्दाफाश कर दिया। और महाप्रभु पर्दाफाश में उतना नहीं था, महाप्रभु तो उन लोग को भक्त बना दिया। इसीलिए कल हम लोग पढ़ रहे थे, महाप्रभु ऐसे प्रेम का जाल फेंका कि कोई भी मायावाद यहाँ पाषुंडी यहाँ वहां से निकल नहीं पाता था, उन लोग भी जाल में आ जाता था और भक्त बन जाता था। उसके आगे तो मायावाद बहुत प्रचार था। और हम लोग को मालूम है किस तरह इन लोग मोनोपोली करता था। इन लोग दूसरा कोई धर्म जाति का लोग अगर भक्ति में या भगवत तत्व में थोड़ा रुचि रखता था तो उन लोग को बहुत तिरस्कार करता था, ऐसे ही था। यस, यस, पंकज नेत्रवजीश प्रभु। हरे कृष्णा बहू जी, आगे मतलब ये जो मायावाद तो ये अभी कलयुग में चालू हुआ ना? मायावाद तो कलयुग में चालू हुआ, भगवत विद्वेषी आगे भी था। भगवत विद्वेषी दे ऑलवेज एग्जिस्टेड। ये ईश्वर शंकराचार्य का जो ये है फिलोसॉफी, ये कलयुग में आया कि उसके पहले युग में आया? शंकराचार्य का फिलोसफी, भगवान शंकराचार्य लोप लेकर तो कलयुग में ही आया। तो उसके बाद ही ज्यादा प्रचार हुआ ये सब बुद्धिज्म और ये सब जो है, तो इसीलिए भगवान ने कलयुग में बोला फिर शिव जी भगवान को ने जाओ अवतार मायावाद लेकर के प्रचार किया। करो। भगवान ने बोला शिव जी जाओ मायावाद प्रचार करो। और शिव जी आकर मायावाद प्रचार किया। ये तो कलयुग में ही तो सबने अवतार लिया या बताया, इसके पहले तो सब फॉलोअर थे ही। लेकिन इसके आगे भी मायावाद तो था, आई एम श्योर, क्योंकि प्रचार किया, ठीक है, शिव जी आके और ज्यादा प्रचार किया, लेकिन नेगेटिव व्यक्ति तो हर एक युग में ही था, जो भगवान को विकृत रूप में, भगवान को मानते नहीं थे, नास्तिक, मायावाद, सब हर एक युग में ही रहता है। ओके, आगे अगला अंतिम पैराग्राफ इस तात्पर्य का। মায়াবাদীরা যে অভিযোগ করে ভক্তরা বেদান্ত অধ্যয়ন করেন না। আচ্ছা, মায়াবাদীরা যে অভিযোগ করে যে ভক্তরা বেদান্ত অধ্যয়ন করেন না তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তারা জানে না যে নৃত্য কীর্তন ও শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রচার হচ্ছে ভাগবত ধর্ম এবং তা বেদান্ত অধ্যয়ন থেকে অভিন্ন। যেহেতু তারা মনে করে যে বেদান্ত দর্শন অধ্যয়নই হচ্ছে সন্ন্যাসীদের একমাত্র কাজ এবং শ্রী चैतन्य महाप्रभु ता করছেন না, তাই তারা তা সমালোচনা করে। तो हम लोग अगर सोचिए सिर्फ क्लासिक क्लास करते, सिर्फ वेदांत पाठ, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद, इन लोग का ही पाठ करते और कुछ नहीं करते, तो कैसा होता क्लास? सब छोड़ के चला जाता। हम लोग का बीच बीच में कितना एक्टिविटीज होते हैं, प्रैक्टिकल है, हम लोग जब करते हैं, हम लोग का टूर्स होता है, हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं भगवान का अलग अलग धाम। हम लोग क्या सिर्फ क्लास ही करते हैं क्या? नहीं, हम लोग डांसिंग कीर्तन करते, प्रोग्राम होता है, पिकनिक होता है,
हाँ। जो लोग वेदांत पाठ कर किया करते थे लगातार वो वेदांती कहलाते थे। वो बहुत बड़े मतलब अध्यात्म में वेदता जाने जाते थे। हाँ, इंद्रावती माता जी लिखा हुआ है ना कि इन लोग डांसिंग कीर्तन में विश्वास नहीं करते हैं, नृत्य कीर्तन इन लोग एकदम नहीं पसंद करते हैं। बोलेगा "ये सन्यासी नृत्य कीर्तन के छी 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 छी", कोई गांभीर्यता नहीं रहेगा, सीरियसनेस नहीं रहेगा, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो वो लोग भेदभाव करते थे प्रभु। हाँ, और हम लोग का देखिए महाराज लोग कितना स्टेज में डांसिंग कीर्तन करते हैं। और ये हाँ, हमका भी याद है, हर एक प्रोग्राम के बाद ये पार्क स्ट्रीट में जो बड़ा पंडाल, तो परम पूज्य भक्ति चौर स्वामी गुरु महाराज एकदम प्रोग्राम हो गया, कथा हो गया, सोची चैतन्य लीला के बारे में बताया। फिर लास्ट में गुरु महाराज सोफा में बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम, और सब आचे रत्न प्रभु, राधापाद प्रभु, और सब स्टेज में उठ जाएगा। और फिर सब ऐसे करके सब गुरु महाराज के साथ नृत्य कीर्तन करेगा स्टेज में। ओ वो क्या दिन था। तो हम लोग देखते हैं कि तो कोई वैसा क्या सन्यासी लोग सब, साधु लोग सब डांस करता है हरिनाम में। अब याद है आप लोग को? आई डोंट नो स्टेज में कितना ऐसे अभी भी होता है, कितना महाराज लोग ऐसे डांसिंग कीर्तन करते हैं, साधु लोग सन्यासी लोग। तो थोड़ी ऐसा क्या है कि साधु लोग सन्यासी लोग सिर्फ पाठ करेगा क्लास में बैठ के, पढ़ाएगा और या जैसे पठन पाठन है क्या? ऐसा नहीं है। हम्म। आप कल ही हम लोग ने दिखाया ना वो महाविष्णु स्वामी महाराज कैसे सारा विश्व में प्रचार कर रहे हैं कीर्तन, डांसिंग कीर्तन, सच्चिदानंद महाराज, सब सब ऐसे। হুম। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য বেদান্ত দর্শন অধ্যয়নের উপর বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন, বেদান্ত বাক্যেষু সদা রমন্ত কোপি ন বস্তু খলু ভাগবন্ত। এর অর্থ হচ্ছে ত্যাগের আশ্রম গ্রহণ করেছেন যে সন্ন্যাসী, যিনি কেবল কৌপিন ছাড়া আর কিছুই পরিধান করেন না, তার কর্তব্য হচ্ছে নিরন্তর বেদান্ত সূত্রের দার্শনিক विवरण आस्वादन करा। इसलिए शायद ये सब मायावाद, अगर आप इन लोग का क्लासरूम में जाएंगे या इन लोग का आश्रम में जाएंगे, देखेंगे सब बैठ के सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो कॉपीन बांधना क्या होता है? कॉपीन मानी वो सन्यासी लोग का जो अंडरवेयर होता है, वो देखे होंगे। तो वो वही बस, और उसका कुछ माने एकदम अकिंचन रहना। साधु का क्या एसेट है? एसेट तो वही उनका कॉपीन, उन्होंने लज्जा परिधान करने का, बस दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। लज्जा को संभालने के लिए बस वही, और कुछ नहीं। यही उनका है, निष्किंचन एकदम। और उनको क्या है, माने कुछ मटेरियल पोजीशन नहीं होना चाहिए। उनका पोजीशन क्या है? बैठ के सिर्फ वेदांत सूत्र पाठ करो। ये मायावाद लोग बोल रहे हैं। एज गुड एज सन्यासी ही हो जाते हैं वो लोग। हाँ, সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বী এই ধরনের মানুষ অত্যন্ত ভাগ্যবান। ठीक है, ऐसे कौन बोल रहे हैं? ऐसे श्रीपाद शंकराचार्य बोल रहे हैं। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই পন্থা অবলম্বন না করার জন্য বারাণসীর মায়াবাদীরা তার নিন্দা করেছিল, কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের উপর तार करुणा वर्षण করেছিলেন। इन लोग को ऐसा नहीं कि इन लोग का पर्दाफाश ऐसा, वो सब में महाप्रभु दिमाग नहीं लगाया। এবং প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে বেদান্ত দর্শনের আলোচনার মাধ্যমে তিনি তাদের উদ্ধার করেছিলেন। पंकज बाबू,
ये नीलाचल महाप्रभु में वो प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर का भी है कि महाप्रभु बाहर बैठे थे, फिर हाँ देखिए तो कितना मिनट्स सेकंड्स अगर आपको मिले तो बताइए, नहीं तो ढूंढना पड़ेगा अभी। हाँ, नीलाचल महाप्रभु जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला है वो भी थोड़ा एक बार दिखा देते। কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের উপর তার করুণা বর্ষণ করেছিলেন এবং প্রকাশানंद सरस्वती और सार्वभौम भट्टाचार्य, देखिए दोनों लीडर है, लीडर को परिवर्तन किया, लीडर को परिवर्तन किया तो ऑटोमेटिक पूरा गोष्ठी परिवर्तन हो गया। महाप्रभु का ये स्टाइल था। এবং প্রকাশনের সঙ্গে বেদান্ত আলোচনার মাধ্যমে তিনি তাদের উদ্ধার করেছিলেন। আগলা শ্লোক 42। মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম মুখ্য সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম নাহি জানে। कोई पढ़िए। মুখ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম নাহি জানে, ভাবুক হইয়া ফেরে ভাবুকের সনে। ভাবুক হইয়া ফেরে ভাবুকের সনে। देखिए यहाँ ये श्लोक भी इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया हुआ अनुवाद है ना, इन्वर्टेड कॉमर्स में क्यों दिया है इंद्रावती माता जी? सुदामय वल्लभी माता जी क्यों दिया है इन्वर्टेड कॉमर्स में? कौन किसको कोट कर रहा है? किसी और ने इसको बोला है, कौन? ये नहीं पता। है यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु कौन किसको कोट कर रहा है? ये जो मायावादी वेदांती हैं उनका कथन है। हाँ, कविराज गोस्वामी कोट कर रहा है कि मायावादी लोग और भी क्या बोला, এই শ্রী চৈতন্য কৃষ্ণ, এই শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য হচ্ছে একটি মূর্খ সন্ন্যাসী এবং তাই সে জানে না তার প্রকৃত ধর্ম কি। ভাবের আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সে ভাবুকদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। तो ये भावुक है, भावुक माने समझ रहे, इमोशनल पर्सन है, ऐसे डांसिंग कीर्तन कर रहे हैं, वेदांत पाठ नहीं, कोई फिलोसॉफी नहीं, छी छी छी, ऐसे उन लोग सोचते थे। हाँ बोलिए सत्यमा माता जी। पर वो सन्यासी अगर मूर्ख है तो वो सन्यासी कैसे बन गया? हाँ करेक्ट, आपको ऐसे बोलना चाहिए था उस समय, आपने बोला नहीं। ओके, तात्पर्य मूर्ख मायावादीरा जाने ना যে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন অপ্রাকৃত বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই তারা আপাতত দৃষ্টিতে মনে করে যে যারা নাচেন এবং কীর্তন করেন তাদের কোনো দার্শনিক জ্ঞান নেই। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ ভক্তদের বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে, কেননা তারা বেদান্ত দর্শনের প্রকৃত ভাষ্য শ্রীমদ্ ভাগবত অধ্যয়ন করেন এবং ভাগবত গীতার প্রদত্ত ভগবানের শ্রী মুখ নিঃসৃত বাণী অনুসরণ করেন। ভগবত দর্শন বা ভগবত ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করার ফলে তারা পূর্ণরূপে ভগবত চেতনা বা কৃষ্ণ ভাবনা লাভ করেন এবং তার ফলে তারা নৃত্য কীর্তন জড়স্তরে সম্পাদিত हन ना। हम लोग का जो नृत्य कीर्तन मतलब वो क्या जड़ स्तर पे है, वो क्या हॉलीवुड टॉलीवुड का स्तर पे है क्या? नहीं, आध्यात्मिक आध्यात्मिक है। यस, তা অনুষ্ঠিত হয় চিন্ময় স্তরে। যদিও সকলেই ভক্তদের আন্দোলনোচ্ছল নৃত্য কীর্তনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা করে এবং তার ফলে কৃষ্ণ ভক্তরা সর্বত্রই হরে কৃষ্ণ ভক্ত নামে পরিচিত, কিন্তু মায়াবাদীরা যথার্থ জ্ঞানের অভাবে ভক্তদের এই সমস্ত কার্যকলাপ সহ্য করতে পারে না। এই সব শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে, এই সব শুনিয়া প্রভু হাসে মন মনে, উপেক্ষা করিয়া কারো না কইল সম্ভাষণে, উপেক্ষা করিয়া কারো না কইল সম্ভাষণে। नहीं मिल रहा तो छोड़ दीजिए पंकज बाबू। এই সমস্ত নিন্দাবাদ শুনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মনে মনে হাসলেন আর ওই সমস্ত অপবাদ তিনি অগ্রাহ্য করলেন এবং মায়াবাদীদের সঙ্গে কোনো কথা বলবেন না, এবং মায়াবাদীদের সঙ্গে কোনো কথা বলবেন না। সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন ঠিক নেই। এই সমস্ত নিন্দাবাদ শুনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মনে মনে হাসলেন, তার এই সমস্ত অপবাদ তিনি অগ্রাহ্য করলেন এবং মায়াবাদীদের সঙ্গে কোনো কথা বলবেন না।
ये प्रभु सीधे बोलबेन ना नहीं, उन्होंने किसी से बात ही नहीं की, ऐसे लिखा हुआ। बोले नहीं मतलब বললেন না এবং মায়াবাদীদের সঙ্গে কোনো কথা বললেন না। আর এই সমস্ত অপবাদ তিনি অগ্রাহ্য করলেন এবং মায়াবাদীদের সঙ্গে কোনো কথা বললেন না। ঠিকই বলবেন বলছে, হ্যাঁ ঠিকই। তাৎপর্য, কৃষ্ণ ভক্ত রূপে আমরা মায়াবাদীদের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করি না, তবে সুযোগ পেলে আমরা বেশ প্রবলভাবে এবং সাফল্যের সঙ্গেই আমাদের দর্শনের आलोके ताদের भ्रांति देखिए दी। अगर हम लोग को मौका देगा तो हम लोग सुना देंगे पूरा वैष्णव फिलोसफी, लेकिन उन लोग का फिलोसफी हम लोग नहीं सुनेंगे। मायावाद भाष्य अगर तार्किक तर्क करेगा तो हम लोग हट जाएंगे। अगला श्लोक 44। उपेक्षा करिया कइलु मथुरा गमन, উপেক্ষা করিয়া কইল মথুরা গমন, मथुरा देखिया पुनः कइल আগমন। মথুরা দেখিয়া পুনঃ কইল আগমন। এভাবেই কাশীর নিন্দুক মায়াবাদীদের উপেক্ষা করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মথুরায় গমন করলেন এবং মথুরা দর্শন করে পুনরায় তিনি काशी फिरे एलेन। ठीक है, मथुरा निकल गया, उस समय उन लोग को उद्धार नहीं किया, लेकिन एजेंडा छोड़ा नहीं, वापस आया जब नेक्स्ट टाइम काशी में, बनारस में। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন প্রথম কাশীতে গিয়েছেন তখন তিনি মায়াবাদীদের সঙ্গে কথা বলেননি, কিন্তু মথুরা থেকে পুনরায় তিনি বেদান্তের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাদের বোঝাবার জন্য সেইখানে ফিরে এলেন। ने आत्मनिर्णय किए कि करना ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, फिर अपने आप को स्थिर किए कि नहीं इनको सिखाएंगे। ওকে। কাশীতে লেখক শূদ্র শ্রী চন্দ্রশেখর, কাশীতে লেখক শূদ্র শ্রী চন্দ্রশেখর, তার ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তার ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর। এই সময় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী চন্দ্রশেখরের বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন। চন্দ্রশেখর ছিলেন যদিও ছিলেন শূদ্র বা কায়স্থ, কিন্তু সেই বিচারে না করেই পরমেশ্বর ভগবান তার গৃহে রইলেন, কেননা তিনি হচ্ছেন সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ঈশ্বর। किसी का कोई प्रश्न है? সন্ন্যাসী। তাৎপর্য, সন্ন্যাসীর যদিও শূদ্রের গৃহে বাস করা উচিত নয়, তবুও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু চন্দ্রশেখর নামক একজন কেরানির বাড়িতে ছিলেন। কেরানি মানে ক্লার্ক না, মানে যে গভর্নমেন্ট ক্লার্ক, পিয়ন টাইপ। 500 বছর আগে বিশেষ করে বাংলাদেশে প্রচলিত প্রথা ছিল যে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম হইলে কেবল ব্রাহ্মণ হওয়া যায় এবং অন্যান্য কুলে জন্ম হলে, এমনকি ক্ষত্রিয় বৈশ্য আদি উচ্চতর কুলে জন্ম হলেও তাদের শূদ্র বলে মনে করা হতো। শ্রী চন্দ্রশেখর যদিও ছিলেন উত্তর ভারতের কায়স্থ বংশোদ্ভূত কেরানি, তবুও তাকে শূদ্র বলে বিবেচনা করা হয়েছিল। তেমনি বৈশ্যেরা, বিশেষ করে সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়কে বঙ্গদেশে শূদ্র বলে গণনা করা হয়। कौन बोल रहा है ये बात? बहुपाद प्रभुपाद क्या थे? वो खुद सुवर्ण बणिक थे, सुवर्ण बणिक। यहाँ कोई सुवर्ण बणिक है? नहीं है प्रभु। वाह, अब सर्वे भी कर लिया आपने। হবে কোন নিশ্চয়। কোন সুবর্ণ বণিক আছে এখানে? ये सुवर्ण बणिक बिजनेस क्लास है। अच्छा, कल्पना माता जी, वेरी नाइस। नहीं, मैं यही पूछ रही थी कि स्वर्ण बणिक कम्युनिटी मतलब दे आर इनटू गोल्ड मेकिंग। हाँ, দুরকম বণিক, সুবর্ণ বণিক, গন্ধ বণিক। সোনার কেনা বেচা করে। हाँ, सोनार सोना का व्यवसाय। बिजनेस करते हैं ना स्वर्ण इन लोग बणिक। बहुत पुराना है, इन लोग का माने महाप्रभु का आगे से इन लोग का अस्तित्व है। बल्लाल सेन,
লক্ষণ সেন, ওনাদের মানে बिफोर महाप्रभु, माच बिफोर महाप्रभु, उन लोग का वंशज मुझे है। ख्याल है लोग सेनको ज्वेलर्स। ये जो आदि सप्तग्राम है, इन लोग का मेन, इन लोग का एंसिस्ट्रल, उनका पूर्वज का जगह है। उद्धारण दत्त ठाकुर वही सुवर्ण वणिक परिवार में आया, बाद में शिल प्रभुपाद भी सुवर्ण वणिक परिवार में आया। ये हम लोग का गणेश चंद्र एवेन्यू में एक तो बिल्डिंग भी है, सुवर्ण वणिक समाज। हाँ प्रभु, यस, देखा। घर के प्रभु ये सामने सुनार का बारे में बोला जा रहा है। ये तो हम लोग के घर के सामने ही है। तो हम लोग भी तो सुनारी है। अच्छा, अभी मत बोले कि हम लोग भी तो सुवर्ण वणिक है। हम सुनार बोल रहे, सुमन बनी थोड़ी बोल रहे। ओके, आगे হ্যাঁ, তেমনি বৈশ্যরা বিশেষ করে সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়কে বঙ্গদেশে শূদ্র বলে গণনা করা হয়। এমনকি বৈদ্যদেরও, যারা হচ্ছে সাধারণ চিকিৎসক, তাদেরও শূদ্র বলে গণনা করা হয়। মানে অনলি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ, বাকি সব শূদ্র। কতকগুলি স্বার্থন্বেষী তথাকথিত ব্রাহ্মণদের প্রবর্তিত এই কৃত্রিম জাতিভেদ প্রথা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্বীকার করেননি। পরবর্তীকালে সেই তথাকথিত ব্রাহ্মণদের বিরোধিতা সত্ত্বেও কায়স্থ, বৈশ্য ও বণিকেরা যজ্ঞোপবীত ধারণ করতে শুরু করল। मैंने जस्ट यह प्रभुपाद बता रहे, उन लोग को खंडन करने के लिए कायस्थ, वैश्य, बणिकेरा, यज्ञोपवीत उन लोग भी धारण करने लग गए। तो ब्राह्मण को और एक्सक्लूसिविटी भी नहीं रहेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भावेर पूर्वे बंगदेशेर राजा बल्लाल सेन दिया है, तार व्यक्तिगत रोषेर बशे सुवर्ण बणिक सम्प्रदायके जातिच्युत करें। हाँ बोलिए। वो लोग जब जाति से जब कोई ब्राह्मण नहीं होता है तो वो लोग ब्राह्मण का वाला कर्म करके अगर जनेऊ धारण कर रहा है तो क्या गलत है यहाँ? आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो जनेऊ धारण कर तो यहाँ गलत है यहाँ पे? क्या गलत है यहाँ? अच्छा, नहीं कोई गलत नहीं। फिर क्यों निकाला जा रहा है इन लोग को? तो आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए उस समय जाकर, हमको क्यों बोल रहे हैं? हम थोड़ी निकाला उन लोग। अरे बात करे तो बोलेगे बता रहे हैं कुछ। एक भजन याद आ गया, আমি কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়। हरे कृष्ण। बताइए इसके आगे। हाँ, तो नहीं, रंग वो तो भौतिक भजन है, उसलिए आगे नहीं। कहाँ अरे भाई रे भाई, কত রঙ্গ দেখি দুনিয়া। हरे कृष्ण। কাহাতে বল্লাল সেন, বঙ্গদেশে সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায় অত্যন্ত ধনী, গোল্ড মার্চেন্টের ধনী তো হয়ে, কেননা সাধারণত তারা সুদে টাকা খাতায় এবং সোনা রূপার ব্যবসা করে। তাই বল্লাল সেন সুবর্ণ বণিকদের কাছ থেকে টাকা ধার করতেন, কিন্তু পরবর্তীকালে বল্লাল সেন देवलिया हो যায়। देवलिया हो जाए মানে ठन मैंने दिवाला निकल गया, क्या बोलते हैं ना हिंदी में ऐसे कुछ, इंसॉल्वेंट। हाँ, दिवाला निकल गया। हरे कृष्ण। সুবর্ণ বণিক মহাজনেরা তাকে টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করে দেয় এবং তার ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে বল্লাল সেন সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়কে শূদ্র বলে ঘোষণা করেন। যা प्रभुपाद हिस्ट्री देखिए कितना जानते थे, हाँ पूरा डिटेल बता रहे। বল্লাল সেন ব্রাহ্মণদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন যাতে তারা সুবর্ণ বণিকদের বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের অনুগামী বলে স্বীকার না করেন। যদিও কিছু ব্রাহ্মণ বল্লাল সেনের এই আচরণ মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু অনেক ব্রাহ্মণ তা বরদাস্ত করেননি। তার ফলে ব্রাহ্মণদের মধ্যেও বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল এবং যারা সুবর্ণ বণিকদের সমর্থন করেছিলেন তাদের ব্রাহ্মণ সমাজ থেকে জাতিচ্যুত করা হয়। এখনো সেই প্রথার অনুসরণ করা হচ্ছে।
বঙ্গদেশে বহু বৈষ্ণব পরিবার রয়েছেন যারা ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ না করলেও বৈষ্ণব তন্ত্র অনুসারে যজ্ঞোপবীত প্রদান পূর্বক দীক্ষা দান করে आचार्य कार्य करें। समझ में आया? ये अच्छा है। मैंने ये बांग्लादेश बहुत वैष्णव परिवार की बात कर रहा है, जैसे हम लोग इस्कॉन में हैं, हम लोग भी ब्राह्मण दीक्षा होता है इधर। श्री गौरीय वैष्णव आचार्य वंश समूह वैष्णव विश्वास अनुसारे ठाकुर रघुनंदन आचार्य ठाकुर कृष्णदास नवनी होर एवं श्यामानंद प्रभुर शिष्य श्री रसिकानंद देवेर वंशे ब्राह्मणेर आदर्श उपनयन संस्कार 300-400 বছর ধরে আজও চলে আসছে। তারা আজও ব্রাহ্মণ আদি সকল বর্ণের দীক্ষা গুরুর রূপ কার্য করে আসছেন এবং শালগ্রাম আদি অর্চনা করে আসছেন। এখনো আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের মন্দিরগুলিতে আমরা শালগ্রাম শিলার অর্চন প্রবর্তন করিনি, কিন্তু অচিরেই অর্চন মার্গ অনুসারে আমাদের সমগ্র মন্দিরে शालोग्राम शिलार अर्चन शुरू होबे और अभी तो हो भी गया। हम लोग का मंदिर में भी भगवान जनार्दन जी है ना, शालोग्राम शिला आप लोग कहाँ है? बीच में बैठे? हाँ बैठे हुए हैं। पंकज प्रभु हरे कृष्ण प्रभु, इसमें भी 3-4 जो नाम आया था, कुछ नाम ये एकदम सब वैष्णव है, सब परम वैष्णव आचार्य। ठाकुर रघुनंदन माने रघुनंदन आचार्य, हाँ। आचार्य ठाकुर कृष्णदास कौन मालूम नहीं, आचार्य ठाकुर कृष्णदास तो बहुत है, कौन है मालूम नहीं। ठाकुर कृष्णदास नवनी होर एवं श्यामानंद प्रभु तो मालूम है, वो ठीक है। रसिकानंद और श्यामानंद तो ये जो नवनी होर होगा कोई परम वैष्णव होगा इन लोग। ओके, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃতলা হরি সবে বলো হরি হরি। हरि